Good evening, everyone, and welcome to today's session of NutriLift 360. I'm Ruchita, your host, and today we are going to discuss a very important subject, which is the protein. We're going to discuss some myths and facts. We'll understand what is the right kind of protein, how much should we consume, and when. We'll also look at the basic foundation supplements. All this and so much more. To begin the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Darab. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a flag bearer in this journey with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen to him very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita. Good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. Today, we are going to be talking about a major macronutrient, protein. And, for years, I've been looking at this subject and realizing that the subject is totally misunderstood. There are so much of information nowadays on the net. There's so much of advertising. We'll say, okay, you get protein in this packet, and one has got to be careful and understand as to, what really protein does and from which source, you're taking and getting protein into your body. Protein is the building block of life. You cannot survive without protein. And each person needs at least 1 gram, per kilo of body weight. So, for example, if you're 60 kilos in weight, you need 60 grams of protein. If you're an athlete, if you're doing more sporting activity, you probably need more, And if you don't get it, you're not going to die tomorrow. Okay, but there'll be a deficiency. And that deficiency over a couple of days, stretched over weeks and months and years and decades, causes lifestyle problems and health challenges. So this is extremely important to ensure that you are getting the right kind of protein. Even when, people are facing some medical challenges, and the medical fraternity generally advises them not to take protein. Now, this is very contrary to life. There cannot be life without protein. You have to have protein. But you got to be also careful that what is the source of protein that you're putting into your body. We have studied a lot of proteins available in the market. And when you realize that the protein that comes from an organic source, that comes from a non-genetically modified source, that is a protein that you want to put into your body. If you're on the Nutrilite protein program, it's one of the best protein programs that you can be on. Ensure that you take advantage of that, because you're having 15% extra protein available to you. So ensure that you stocked up enough for not only you, but your family, and ensure that, you're getting the right protein. I had a call in the afternoon from somebody who was like 75 years old. And they said, when should I take this protein? Now, this is also extremely important. You must make sure that your entire requirement of protein, you're consuming at least 50% in the morning, and the rest 25% at lunch and the other 25% at dinner. It cannot be that you are having a meal and there's absolutely no source of protein in it. If you're a vegetarian, it is extremely easy to achieve that. Okay, and hence you are at greater risk of creating protein deficiencies in yourself. If you're a vegetarian, then it's even more important. But even if you're a non-vegetarian, you got to understand that when you take protein from a non-vegetarian source, you are not only getting the protein, but along with you're getting the bad stuff of cholesterol coming into the body. So understand the subject well. And today you're going to get a pretty good introduction as to what
this protein is about, what are the myths and facts from somebody, okay, who has really changed his health around. He was busy corporate executive, okay, had no time for, forget about macro and micronutrients, about even food. Uh, and when he realized that his body was suffering, this took a decision. Raj changed his entire health around. So listen to Raj very carefully, because what he has to say will have a tremendous impact on not only you but your friends and family. So over to you, Raj. Thank you very much, Farooq, and thanks for all this insight. Because had I not been in the part of this group or a part of this community, I would have never realized the importance of health and importance of all this nutrition. Now, very clearly, now my definition of health was very clear that if you're not sick, that means you are fine. So, अगर आप बीमार नहीं हो तो आप स्वस्थ हो, ये मेरा definition हुआ करता था. And there is a lot of एक्सपीरियंसेस आई वुड से जो पास्ट के हैं जो मेरे को मैं रिलेट कर पाता हूँ. बिकॉज मेरा जो प्रोटीन के साथ जो पहला एक्सपोजर हुआ था, इट वाज इन द ईयर 1998. बिकॉज फॉर माय इंटर्नशिप आई हैड गॉन टू अ फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री. एंड उस समय में ये इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री होती थी. और जो ये प्रोटीन बनाते थे, जब गोदरेज का ग्राउंडनट ऑयल एक्सट्रैक्ट करके जो रेसिड्यू बचता था, वो बॉम्बे में इस फैक्ट्री में आता था, और उससे ये लोग प्रोटीन बनाया करते थे. सो मेरा उतना ही डेफिनेशन था प्रोटीन के बारे में. नाउ एज फारूक वेरी राइटली सेड दैट हाउ मच प्रोटीन डू वी नीड, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे. बट मैं आपको थोड़ा सा उसी में कुछ ब्रीफ ऐड करता हूँ. राइट, ब्रीफ ऐड करता हूँ. क्यों ये सब, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन. बिकॉज अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है और आपको सब कुछ दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए, सीमेंट दे दिया जाए, और सारी कुछ दे दिया जाए, ये ब्रिक्स दे दिया जाए, आपको सब कुछ मिल जाए, और मैं बोलता हूँ मैं उसमें से एक एलिमेंट वापस ले लूंगा आपसे, एंड क्या आप वो बिल्डिंग बना पाएंगे? एंड दैट एलिमेंट इज इफ आई टेक ब्रिक बैक फ्रॉम दैट, जो जो मटेरियल मैं आपको दूंगा, क्या आप बना पाएंगे? क्या आप बिल्डिंग बना पाएंगे? द आंसर इज नो. एंड दैट इज व्हाट प्रोटीन इज टू आवर बॉडी. द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट प्रोटीन, यू नो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन आप मेजर कर सकते हैं, आपके ब्लड रिपोर्ट में आ जाता है. आपका HDL लेवल ऊपर नीचे है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना चाहिए. आपका विटामिन डी लेवल ऊपर नीचे है, आपको समझ में आ जाएगा. अनफॉर्चुनेटली प्रोटीन एक ऐसा एलिमेंट है, आपको नहीं समझ में आता. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझ में आता, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट सम ऑफ द प्लांट्स, और जब मैं देखता हूँ कि जब वो प्लांट धीरे धीरे मरने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी पत्तियां गिर जाती है. उसी प्रकार जब आप प्रोटीन डेफिशिएंसी देखेंगे तो सबसे पहले जो प्रोटीन लैक होने लगता है वो आपके हेयर में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, आपके नेल्स में रिफ्लेक्ट होने लगेगा. बिकॉज ये वो एलिमेंट है जो उसके बिना भी जी जी सकते हैं. सो प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एंड दैट्स हाउ यू नो दैट आप प्रोटीन डेफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं. So this is the most important subject. The reason being कि this is the building block of a human body. और अगर एक बिल्डिंग ब्लॉक ही अगर कमजोर हो जाएगा, सो ऑन द फेस वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज आ जाए, कोई हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आ जाएंगे, आप देखेंगे दैट द बॉडी इज लाइक इमीडिएटली उसका शिकार हो जाता है. सो आइए लेट्स सी सम फैक्ट्स लाइक व्हाट इज इट ऑल अबाउट, एंड क्या फैक्ट्स हैं ना. ओके, या, सो continue to. Okay, so maximizing the impact of protein, and today we are going to discuss only on this one subject called protein, and why protein is so important, right? Now let's see some facts, like where do we stand today? अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन रियलाइज और दे नो दैट दे आर प्रोटीन डेफिशिएंट. डिस्पाइट आपको फील होगा दैट यू आर ईटिंग द बेस्ट बेस्ट क्वालिटी फ्रूट वेजीज एंड द योर फूड क्वालिटी इज गुड, बट स्टिल 8 out of 10 Indians are deficient in protein. 9 out of 10 Indians are unaware of daily requirement of protein. अगर फरूक अभी ये बात नहीं बताते कि हाउ मच प्रोटीन डू वी नीड 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मोस्ट ऑफ अस, मैं भी इंक्लूडेड, पहले मैं भी यही सोचता था कि प्रोटीन तो छोटे बच्चों को जरूरत है जो ग्रोथ फेज में है, अडल्ट तो डोंट इवन नीड प्रोटीन. And it's only over here I realized that protein ki requirement right from the day one, when we have taken, in fact not even taken birth, much before that, right? उसके पहले से ही we need protein, until our last breath we need protein. So ये एक बहुत बड़ा myth था कि protein is needed only for the children and not for the adults, right? But
Everybody needs protein. And मजे की बात यह है कि 9 out of 10 Indians don't even know how much protein do they need. दिस आर द डिफिशियंसीज लेवल और अक्रॉस इंडिया। अगर आप देखिए तो लखनऊ इज लाइक ये जो डिफिशियंसी है, प्रोटीन डिफिशियंसी इन 70% ऑफ द पेरेंट्स, राइट? बिकॉज पेरेंट्स को ये फील होता है कि ये तो बच्चों के लिए है, हमें नहीं चाहिए। और ये हमने बचपन से देखा था। सिंगल्स सीन टू हैव बेटर प्रोटीन इंटेक देन फैमिलीज, बिकॉज फैमिली में आप स्किप हो जाता है, वो जो मील में वो डिवाइड हो जाता है, स्किप हो जाता है, और हम वो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं ले पाते। Approximately 62% of the pregnant women lacting mothers face protein deficiency. Only 52% of the mothers of 8 to 15 years old associate protein with health. Working women and housewives found to be 70 to 80% protein deficient. Obviously, it's very true because मॉर्निंग में जो बिजी वर्किंग पीपल है वो आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं सोच पाते हैं। Now, when I mean healthy over here, it doesn't mean four चार आलू का पराठा. It means a meal which is nutritionally full है, मतलब, right? So mothers में 72% lack, single woman 53% lack, single men 44% lack, children 44%. So this is the current statistics. So, no doubt India is a youth nation, but India is also gradually emerging to be a sick nation. हम बीमारी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट? 73% डाइट्स इन द प्रोटीन आर डिफिशिएंट, बिकॉज अगर आप एक देखिए उसमें आपको सॉस ज़्यादा दिखाई देगा उस फूड में। फॉर एग्जांपल, जब मैं कॉर्पोरेट में था, व्हेन आई वाज वर्किंग इन मुंबई, ज़्यादा करके मैं वड़ा पाव खा लेता था। एंड इमेजिन करें वड़ा पाव में प्रोटीन कहाँ से आ रहा है ही नहीं उसमें प्रोटीन। ठीक है, 93% are unaware of the ideal protein requirement. 84% veg diets are deficient. Unfortunately, इंडिया में जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन का ऑप्शन ऐसे ही बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, राइट? 60% ऑफ द नॉन वेज डाइट्स आर लैकिंग। एंड इवन इफ यू आर हैविंग नॉन वेज, देर इज समथिंग नोन एज बायो अवेलेबिलिटी, राइट? सोर्स में होना चाहिए, आपकी बॉडी उसको ऑब्जॉर्व कर पानी चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाता है। एंड दिस इज द डिस्कशन दैट नॉर्मली वी हैव कि बॉस, बॉडी शुड हैव द पोटेंशियल इन एक्सट्रैक्टिंग द प्रोटीन फ्रॉम दैट नॉन वेज सोर्स एंड अब्जॉर्विंग इन योर बॉडी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग मिस कर जाते हैं, right? Let's see some myths about protein sources. Protein is easily available in fruits and vegetables. Unfortunately, no. Fruits and vegetables are rich in vitamins and minerals. They don't have protein. 70% pregnant women lacting mothers wrongly believe this. Leafy vegetables are good source of protein. Again, they have more micronutrient, जिसको कहते हैं आप, vitamins है, minerals है, phytonutrient है, ये आपको उसमें मिलेगा। Protein are bad for health. पार्शियली आई एग्री टू दिस पॉइंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि प्रोटीन किस सोर्स से आ रहा है, राइट? सो पार्शियली आई वुड से कि आई एग्री टू दिस पॉइंट, बिकॉज ये इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि वो सोर्स क्या है प्रोटीन का। बिकॉज अगर वो सही सोर्स नहीं है, इफ जस्ट लाइक प्रोटीन के नाम पे आप सिर्फ नॉन वेज खाए जा रहे हो, आप सिर्फ चिकन खाए जा रहे हो, डेफिनेटली इट विल हैव सम अदर कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज प्रोटीन इज एन एलिमेंट इन इट, बट देयर आर ऑल्सो अदर एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद इट। सो वेन एवर देर इज एनिमल सोर्स, it will increase the acidic value in your body, and the minute your acidic value will go up, the probability of you falling sick is much higher, right? So we are made of protein, just the way I said. Please excuse this thing. So we are made of protein, just the way I said कि अगर एक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो ब्रिक है एक बिल्डिंग का, so protein is the building block of the human body, and if there is no protein, there is no you. नाउ प्रोटीन, राइट, आइए इसका कुछ डेफिनेशन देते हैं। नाउ प्रोटीन्स आर मेड ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जब इसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया गया था, देयर वाज सम नॉन एसेंशियल, सम एसेंशियल। इसका मतलब ये था कि जो एसेंशियल है वो फूड में नहीं है, आपकी बॉडी को चाहिए और वो चाहिए। नॉन नॉन एसेंशियल कैटेगरी इसलिए उसको डाला गया था अमीनो एसिड्स को कि बॉडी उसको, मतलब उसको मिल जाता था फूड में और वो सोर्स थे उसके अवेलेबल। ये तब था जब इसको बनाया गया था। बट टुडे इफ यू सी, इवन द नॉन एसेंशियल हैव बिकम एसेंशियल। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू टेक होम टुनाइट, राइट? तो जो नॉन एसेंशियल है, अगर आप गूगल सर्च करके देखेंगे, नॉन एसेंशियल कैटेगरी है, बट वो थी जो 30 साल पहले थी। आज इवन द नॉन एसेंशियल हैज बिकम एसेंशियल, राइट? सो जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इट इज मच हायर इन द अर्बन पॉपुलेशन इवन कंपेयर टू द रूरल वंस। मोर देन 90% आर अनअवेयर ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो ये कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। सो देर आर 9 एसेंशियल एंड 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है।
सो बेसिकली जो नॉन एसेंशियल है दिस कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, एंड जो एसेंशियल्स है दिस कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी एंड हेंस यू नीड फ्रॉम आउटसाइड, राइट? नाउ इमेजिन करिए अगर आप ये एक एक एलिमेंट, एक एक अमाइनो एसिड को अगर आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो दे हैव अ वेरी वेरी वाइटल रोल टू प्ले। नाउ जब आप प्रोटीन ले भी रहे हैं, यू नीड टू बी श्योर अबाउट दैट द सोर्स हैज ऑल द एसेंशियल एंड द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, बिकॉज ये जो ब्लॉक चेन जो बनाते हैं वही नहीं ढंग से बनेगा अगर ये एक भी एलिमेंट इसमें से मिसिंग है, राइट? ये रोल क्या प्ले करते हैं अमाइनो एसिड्स, व्हाट रोल डू दे प्ले इन अ बॉडी, राइट? यू नीड देम टू बिल्ड मसल, you need them to boost immune system, you need them to sustain a normal digestive system, you need them to transport essential molecules around the body, is a very very important thing. Now imagine करिए अगर ये अमाइनो एसिड्स ही नहीं होंगे तो क्या ये सारे फंक्शंस पूरे होंगे? It supports the regulation of expression of DNA and RNA, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड में बहुत रोल प्ले करता है। नाउ ये एक एलिमेंट को अगर आप स्टडी कर लेंगे, आप डायबिटीज पे कंट्रोल पा सकेंगे, you can have a complete control over your a lot of health related issue, lifestyle disorders, if you can just understand this one element. What is, how does amino acid help in breaking down of the food? वेट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मसल बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इट इज रिक्वायर्ड इन ग्रोइंग एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू, राइट? मेक हॉर्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स। नाउ व्हाई डू यू थिंक बच्चों में एडीएचडी और बहुत सारे इश्यूज अब निकल के आ रहे हैं? उसका मेन फैक्टर क्या है? मेन फैक्टर इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, राइट? सो हमने बहुत सारी चीज़ों पे महारत हासिल कर ली है, हमें सब कुछ समझ में आता है, बट हेल्थ को अब अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, बिकॉज बाय द टाइम यू विजिट अ डॉक्टर द डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन, एंड मोस्ट ऑफ दिस डैमेज आर नॉन रिवर्सिबल। हेंस एवरी हाउस नीड टू नो दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे मतलब ये इंपॉर्टेंट है हर हर फैमिली को जानना ये सारी चीज़ें आज की तारीख में, एंड दे प्रोवाइड एन एनर्जी सोर्स। ना जब मैं वड़ा पाव खाता था, एक थोड़ी देर के लिए वो कार्ब्स के वजह से एक एनर्जी बर्स्ट आ जाती थी, लेकिन बट आप न्यूट्रिशनली डिफिशिएंट हो रहे हो। मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल, ये रिफ्लेक्शन है आपकी बॉडी के हेल्थ का, बिकॉज ये वो एलिमेंट है विच कैन लाइक द बॉडी कैन डू विदाउट देम, मतलब ठीक है, इट इज ओके, मतलब बट अगर ये डाई होना शुरू हो गया या द क्वालिटी डिटोरिएट होना शुरू हो गया, इट इज अ टेलटेल साइन दैट योर बॉडी इज लैकिंग द राइट सेट ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी। सो दिस आर द रोल दैट द अमीनो एसिड प्ले इन योर बॉडी। The amount of protein requirement depends upon, now जैसे फारूक बता रहे थे, द स्टैंडर्ड थंब रूल इज 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और अगर आप एक फिजिकल एक्टिविटी में आप एक्सरसाइज करते हैं, आप लैक्टिंग मदर हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, सो देन यू नीड 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, दिस इज द आइडियल रिक्वायरमेंट। नाउ अगर कोई ओवरवेट है, आप इमेजिन करिए कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुल हो रही है, और अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो जो क्रेविंग्स है, जो अर्ज है बार बार खाने का, जो स्वीट क्रेविंग है, वो सारे ऑन रहेंगे। सो इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल फीचर्स में क्या है, आपका सेक्स, एज, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, प्रोटीन क्वालिटी जो है वो अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हाउ डू यू नो दैट व्हाट इज द गुड क्वालिटी सोर्स ऑफ अ प्रोटीन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है द डेफिनेशन ऑफ अ गुड प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, विच इज कॉल्ड पीडी का स्कोर। नाउ जो पीडी का स्कोर अगर 1 है, दैट इज द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ अ प्रोटीन। मोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल लेबल पे अपने लिख के भी नहीं देते हैं दैट व्हाट इज द पीडिकास वैल्यू ऑफ द प्रोटीन, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत सारे अच्छे टॉप नॉच ब्रांड्स हैं जो ये मेंशन भी नहीं करते उनके लेबल पे दैट व्हाट इज द पीडिका स्कोर ऑफ द प्रोटीन, राइट? सो पीडी का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिफाइन करता है दैट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वालिटी प्रोटीन। सो दिस इज अनदर पॉइंट दैट यू नीड टू टेक होम टू राइट विद यू, ये इसको आप अपने नोटबुक में कहीं लिख लीजिए, दैट कभी भी अगर प्रोटीन सोर्स चेक करना है तो उसका पीडी का स्कोर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है बाय द बॉडी, right? Protein is essential in morning nutrition, as Farooq just rightly said, that you need protein early in the morning, right? Almost 50% of the protein should be consumed by the body before your lunch, right? So the ideal is 30, uh, आप 50% सुबह ले लीजिए, 30% दोपहर को लीजिए, 20% शाम को लीजिए, दैट्स द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन जो आपकी होना चाहिए डाइट में। नाउ व्हाई डू यू नीड प्रोटीन अर्ली इन द मॉर्निंग? बिकॉज रात को जब आप सो रहे होते हो,
नाउ स्टार एंड आप सो रहे होते हैं रात को, बिकॉज आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल वेक अप टिल 5 AM 6 AM, आधी आधी रात तक लोग जगे रहते हैं। तो जब आप रात को जब सोते हैं और जब आप सुबह उठते हैं, तो बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर, बॉडी बॉडी में जो रिपेयर होता है उसके वजह से द प्रोटीन बैलेंस इन द बॉडी इज नेगेटिव इन द मॉर्निंग। And morning when we get up, we go for our like work and all everything. That's when we are kick starting the day. So when you kick start your day, the protein requirement is very high in the body. And ये वो टाइम होता है अगर आप अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हैं, या यू आर नॉट हैविंग a न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, your protein balance is already negative, and now imagine करिए body is trying to start the day with a negative fuel in it. सो अगर नेगेटिव फ्यूल से आप करेंगे तो कुछ दिन तक तो खींच लेगा, but it can't become the way of life. And suddenly you will find that even after getting up in the morning, you feel very fatigued, you don't feel good, you don't feel like उठने का मन नहीं करता, आप सुस्त हैं। And the main reason is the protein level in our body is negative. It boosts our metabolic rate by 15 to 30%, उसको बूस्ट करता है। सो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो बॉडी की, विच नीड्स टू बी स्टार्टेड ड्यूरिंग द डे, ये उसको स्टार्ट करता है। सस्टेन्ड एनर्जी रिलीज, you need more energy in the morning and then towards the later part of the day. So ये उसमें आपकी मदद करता है, और ये जो थर्मिक इफेक्ट है उसको मेंटेन करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थर्मिक इफेक्ट? मान लीजिए आपने 5 किलो पेपर को लिया और आपने उसमें आग लगा दिया। 5 किलो पेपर में वो थोड़ी देर के लिए आग जलेगा और वो बुझ खत्म हो जाएगा, एशेस, राइट, फॉर अ लाइक एक स्पाइक इन द एनर्जी, और वो खत्म हो जाएगा। वर्सेस अगर आप 5 किलो एक अच्छे डेंस वुड को जो सूखा हुआ है आप उसको आग लगाएंगे, तो वो बहुत देर तक सस्टेन करेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल अ थर्मिक इफेक्ट, राइट। सो जब थर्मिक इफेक्ट हाई होता है, वो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है आपके अंदर, जो सटाइटी है वो काफी देर तक रहता है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन वाई प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग? बिकॉज आपका जो मसल मास है, ब्रेकफास्ट नीड्स मोर कंपेयर टू द डिनर। सो इवन अ लाइटर डिनर में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितना हाई इज टूवर्ड्स द हायर साइड। सो योर हाई मसल वॉल्यूम, हाई ग्रिप स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ आपकी मॉर्निंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑप्टिमम मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिक हेल्थ, इम्प्रूव फिटनेस एंड फंक्शनैलिटीज, एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बेटर करता है इफ़ यू आर हैविंग प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, यू नो। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अ प्रॉपर वेट मैनेजमेंट, बिकॉज आपकी सटाइटी को ये अच्छा रखता है। सेकेंड, जो आपकी डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस है, विच इज़ द एनर्जी बर्निंग, उसको अच्छा रखता है। हेंस इट इज़ वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग द वेट मैनेजमेंट। सो अगर किसी ने भी वेट मैनेजमेंट की तरफ जाना है, योर मसल मास नीड्स टू बी गुड, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव द राइट सेट ऑफ प्रोटीन। Soy protein in weight management and mechanism, right? Satiety, appetite regulation, thermogenesis and metabolism, preservation of lean body mass, ठीक है, enhance fat oxidation, glycemic control, कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो सोई प्रोटीन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नो ऑन ईच ऑफ दिस थिंग्स दैट यू आर सीइंग ओवर हियर, वी हैव अ स्पेशल वर्कशॉप that we conduct, or there is a special knowledge session that we do on all these things, right? So आप उसमें जरूर आइएगा, बिकॉज आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या और ये कैसे हमारे को हेल्प करता है। बेटर इन मेंटल हेल्थ, राइट। आपने कभी देखा है ये जो हार्मोन रेगुलेशन होते हैं, स्पेशली इन किड्स हु हैव दिस स्पेशल सिंड्रोम एंड ऑल, अगर आप उसमें देखें तो प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है उसमें। एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन रिच फूड, ये चीज़ें अब ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में आ रही है। बिकॉज हाई कार्ब क्या करेगा, वो एक स्पाइक तो देगा एनर्जी का, लेकिन वो उतना ही ड्रॉप भी देगा। So protein plays a very, very important role in children's health, and especially in the mental health, right? Improved energy levels, stable blood glucose, insulin levels, delayed gastric emptying, right? Improved performance, mood, alertness, and productivity. You know what you can expect from this session is an uh, a बेसिकली अ डोवरे आई वुड से, मतलब ये सेशंस जो है, ये जब मैं इनको पहली बार देख रहा था मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई थी, ये अपने आप में इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एटलीस्ट आज से पहले हमें ये सब पता ही नहीं था। बिकॉज हमें पता ही नहीं था तो हम कभी इसको फोकस ही नहीं करते थे। एटलीस्ट दिस इज लाइक, आई विल नॉट से दिस इज लाइक अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बट एटलीस्ट दिस इज डोरवे टू दैट बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन आई वुड से, राइट। So protein should be consumed across the day, especially during the breakfast. Common practice protein consumption lowest in the breakfast and higher at dinner.
ना प्रॉब्लम ये है कि डिनर के बाद आप कोई वेट ट्रेनिंग के लिए थोड़ी ना जाने वाले हो। तो क्लिनिकल स्टडीज हैव shown that effective of protein rich versus protein poor breakfast studied increase muscle mass in the people who consume protein rich breakfast. So अगर आपका मसल स्ट्रेंथ स्ट्रांग रहेगा, सो ओवरऑल आपकी जो हिल स्पैन है कंपेयर टू लाइफ स्पैन, दैट इज गोइंग टू improve, राइट? प्रोटीन न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी, प्रोटीन टाइमिंग, प्रोटीन क्वालिटी। ना अगर आप ये देखिए तो हम ये सारी बातें हमने की है कि प्रोटीन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। पीडी का स्कोर शुड बी 1। प्रोटीन का टाइमिंग क्या होना चाहिए? 50% प्रोटीन ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, 30 ड्यूरिंग लंच, 20 ड्यूरिंग अर्ली डिनर। प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डे, वी जस्ट डिस्कस टोटल इनटेक प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए, विच इज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। सो ये है पूरी प्रोटीन की अगर आप स्ट्रैटेजी को अगर आप समझिए तो। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन? नाउ प्लांट बेस्ड प्रोटीन में अगर आप देखिए तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोर्सेस हैं। एनिमल सोर्स अगर आप देखिए ना, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज है कि जो हमारे जो बैक्टीरियाज है, जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, now whenever we are having a high rich non-veg source of protein, as a side effect of that our cholesterol level goes high, बिकॉज इनको डाइजेस्ट करने के लिए जो गट बैक्टीरिया जो चाहिए उसका जो वो प्रोसेस फॉलो करता है, उसका साइड इफेक्ट ये होता है दैट इट इंक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन योर ब्लड लेवल। So hence there is a side effect of taking too much of animal based protein. But plant based protein की सबसे पॉजिटिव चीज क्या है? ये जब बॉडी में जाता है तो ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन स्टेट में लाता है, एंड अल्कलाइन स्टेट में एक बॉडी बीमार नहीं पड़ता, और अगर वो बीमार है तो स्वस्थ हो जाता है। So that is the one of the biggest powerful reason that why a plant-based protein should be taken. सबसे बड़ी बात है, it doesn't leave any residue in your body, and because it doesn't leave any residue in your body, it doesn't leave any side effect in your body. हम सब ने सुना है कि राइट, बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे लोग जिम में सडनली कार्डियक अरेस्ट, एंड दैट कार्डियक अरेस्ट का कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द रीजन, आई एम नॉट से फॉर ऑल, बट वन ऑफ द रीजन वाज आल्सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन दैट दे वर कंज्यूमिंग। Was it their dietitian or nutritionists who were not aware about it? Probably they might not have the full information is what। कई बार क्या होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन होता है बट आपके पास सोर्स नहीं होता। दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट चैलेंज। फर्ज करिए आप एक बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हो, डाइटिशियन हो, तो क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि कल आप हिमाचल प्रदेश बद्दी में जाके आप अपनी फैक्ट्री लगा लोगे? सो कई बार डिस्पाइट हैविंग द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द नॉलेज, you don't have the access to the right source of product. Thankfully, through Farooq, and why I say Farooq, because Farooq has represented so many Asian Games, Olympics, ये सारी चीज़ों जो उन्होंने रिप्रेजेंट की है, जहाँ पे वाडा है, वाडा इज दैट एजेंसी जो जो कंट्रोल करता है आप क्या खा रहे हैं, उसमें क्या सोर्सेस है एंड ऑल दो स्टफ। थैंकफुली बिकॉज ऑफ हिज स्पोर्टिंग करियर, वी वी आर कनेक्टेड टू द राइट सोर्स जो चाहिए हमारे को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज नॉलेज तो बहुत जगह है, बट नॉलेज आधा इंफॉर्मेशन है। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो यूनिट टू हैव द राइट प्रोडक्ट टू कॉम्प्लीमेंट दैट नॉलेज। ना हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, इतना सारा चीज? ऑब्वियसली टू इम्प्रूव आवर हेल्थ स्पैन कंपेयर टू आवर लाइफ स्पैन, बिकॉज ये देखा गया है कि अगर आपकी लाइफ स्पैन 90 साल की है, कि आपकी हेल्थ स्पैन भी वैसे ही प्रोपोर्शनेटली है। या प्रैक्टिकली क्या होता है, आपकी लाइफ स्पैन तो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन द मेडिकल साइंस, बट पोस्ट 40 years of एज हमारी हेल्थ स्पैन ड्रॉप होने लगती है, एंड देन वी आर मेडिसिन डिपेंडेंट। बट यू नीड टू स्टडी अबाउट दिस ब्लू जोन, और ये सारी जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आती है। Now, blue zones are the region where a higher than usual number of people live much longer than the average. एंड यहाँ पे ये देखा गया था, ये जो लोग हैं जो ब्लू जोन में रहते हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मच बेटर, इनकी लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन आर मच बेटर। एंड देन देर वॉज दिस रिसर्च विच वॉज डन on this. So there are 1, 2, 3, 4, 5 blue zones in the world जहाँ के लोगों की हेल्थ की बहुत सिमिलैरिटीज देखी गई थी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बहुत सिमिलैरिटीज देखी गई थी, उनका जो लाइफ स्पैन है, इट वॉज सीन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लिव मोर देन 100 years of एज, एंड द पॉजिटिव थिंग वॉज इवन देयर हेल्थ क्वालिटी वॉज इन सिंक टू देयर लाइफ स्पैन। And what was the common thing that they saw, right? That they eat very wisely,
सो इनके जो जब 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 इनके ऊपर सर्वे किया गया, जब रिसर्च किया गया, सो कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल के आए ये पूरे जोन का, और इसीलिए इसको ब्लू जोन बोलते हैं कि दे मूव नेचुरली, दे वॉक, दे गार्डन, और बेसिकली दे डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। देयर आउटलुक विच इज जो हमारा माइंड सेट है, ये अनवाइंड फेथ पर्पस ड्रिवन है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को कैसे देख रहे हैं, यू नीड टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम पर्पस इन लाइफ, राइट? ये देखिए, ये एवरेज ये चीज दिखा रही है, ठीक है? लाइफ में भागते रहना ये अलग सब्जेक्ट है, कि भागना चाहिए नहीं भागना चाहिए, हम क्यों चीजों के पीछे भाग रहे हैं, ये एक थियोरी है। बट लाइफ में पर्पस होना, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, right? You should have faith in something, right? Unwind yourself. They eat wisely. They opt for plant-based food. Now, अगर आप most of ये countries को देखिए, so ये non-veg dominant है, लेकिन people who live in blue zone, they prefer to have more plant-based food, right? They eat wisely. They eat in moderation, a lot of stuff, right? They connect. That is what you call as social bonding. एंड थैंकफुली थ्रू दिस प्रोग्राम, आज तो आप ये डिजिटली देख रहे हैं, बट आप जहाँ पे भी हैं, जस्ट चेक विद द पर्सन हु इज इनवाइटेड ओवर हियर दैट विच इज द नेक्स्ट फिजिकल इवेंट वेर यू कैन मीट, कनेक्ट, वी लुक फॉरवर्ड। ये सारी चीज़ों देखने का मौका मिले तो जरूर करिएगा, बिकॉज दैट कम्युनिटी बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये चीज़ इस प्रोग्राम में न्यूट्रल 360 में बहुत इफेक्टिवली इसको फॉलो किया जाता है, दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। Now, the best part about this community is एक लाइफ छोटी पड़ जाएगी if we have to learn everything from our experience. बिकॉज अब सब कुछ अगर आप अपने ही एक्सपीरियंस से सीखोगे तो उसको इम्प्लीमेंट कब करोगे? सो ऑब्वियसली एक लाइफ छोटी पड़ जाएगी, बट वेन यू आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी इट इज़ वेरी इजी टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। इट इज़ वेरी इजी वेन यू आर डाउन somebody else is lifting you up, because you see that even that person went through the same thing. Most of our health buddies, उनका ग्राफ कभी भी इंक्लाइंड ग्राफ नहीं था कि ऊपर ही ऊपर जाते जा रहा था इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। वो भी स्टैग्नेंट हुआ, वो भी ड्रॉप हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये नहीं है कि ड्रॉप हुआ, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ड्रॉप होने के बाद हाउ क्विकली यू गेट अप फ्रॉम दैट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट यू लर्न व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। सो ब्लू जोन पे स्टडी करिएगा, बिकॉज ये जो पूरी फिलोसफी आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द इसको डिजाइन की गई है। नाउ, ब्लू जोन फूड गाइडलाइंस क्या होते थे? 95 to 100% जो वो खाते थे, इट वॉज प्लांट बेस्ड। गो होली होल, सिंगल इंग्रेडिएंट, रॉ कुक्ड और फर्मेंटेड एंड नॉट हाईली प्रोसेस्ड। प्रोसेस फूड तो उनके डेफिनेशन में नहीं था, और ये चीज़ अगर आप अपने भी ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देखेंगे तो वो भी प्रोसेस फूड को नहीं खाया करते थे। डेली डोज ऑफ बीन्स, हाफ कप टू 1 कप पर डे, ड्रिंक मोस्टली वाटर, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, स्नैक सम नट्स, probably 1 to 2 handful a day, गो इजी ऑन फिश। तो बेसिकली ये फूड प्रैक्टिसेस थे जो देखा गया था कि जो ब्लू जोन के लोग अडेप्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं द फिलोसफी वॉज सिमिलर, राइट? टुडे बिकॉज ऑफ एडवांस इन द टेक्नोलॉजी, आप नॉन सीजनल फूड भी सीजन में एंड सीजन का नॉन सीजन में खा सकते हैं। नाउ देर वॉज सम साइंस बिहाइंड इट, वाई ईट लोकल, वाई ईट सीजनल। देर वॉज सम वेरी डिफाइंड कैटेगरिकली, इसके पीछे साइंस थी कि क्यों हमें सीजनल खाना चाहिए। टुडे, लाइक नाउ, दिस इज द नेगेटिव साइड इफेक्ट ऑफ द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द कोल्ड स्टोरेज प्रोसेस। आप कोई भी चीज़ कभी भी खा सकते हैं, तो जो सीजन का जो रिलेवेंस था, वो फ्रेश फ्रेश में जो वाइटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, जो बायो अवेलेबिलिटी होती है एक फ्रूट और वेजिटेबल में, वो जो चीज़ मिलती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होते जा रही है, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू रिटेन, राइट? नाउ, ये जो सोए प्रोटीन है, इसका कुछ बेनिफिट्स हैं, एनालिक एनाबोलिक एंड बियॉन्ड एनाबोलिक। बेसिकली आपके हार्ट हेल्थी, हमने अमाइनो एसिड्स में देख लिया था जब हम अमाइनो एसिड्स को स्टडी कर रहे थे कि वो क्या रोल है और क्या बेनिफिट है। दिस पॉइंट वी हैव सीन ओवर देयर, राइट? हार्ट हेल्थ में कैसे मदद करता है? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ब्लड लिपिड प्रोफाइल लेवल, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, इसको ड्रॉप करने में आपकी मदद करता है। जो आपके मेटाबॉलिक हेल्थ है, प्रोवाइड्स फुलनेस, एनर्जी एक्सपेंडिचर, फैट बर्निंग, हार्मोनल बैलेंस, इसमें आपको बहुत मदद करता है। बोन मिनरल डेंसिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। वेट मैनेजमेंट में इट प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बाय मेंटेनिंग योर सैटिस्फैक्टी। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड लिपिड प्रोफाइल, फैट बर्निंग, हार्मोनल रेगुलेशन एंड लीन बॉडी मास में आपकी बहुत मदद करता है ये।
What are some facts or some myth about protein? Soy protein affects reproductive hormones. The answer is no, it doesn't. इसको अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो हम आपके साथ वो सोर्स वो रिसर्च शेयर कर सकते हैं और गेट इन टच विद द पर्सन हु इज इनवाइटेड ओवर हियर इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट. Soy causes early puberty. The answer is no. Soy is bad for your thyroid. Answer is no. Soy allergies are common. Like any food, soy can cause allergic reactions in sensitive individuals. It is said that haldi turmeric is the most natural ingredient, लेकिन 1 in a million में वो भी रिएक्ट कर सकता है तो आपके बॉडी के हिसाब से बट ये नॉर्मल है. सो दिस आर सम फैक्ट्स अबाउट सोया प्रोटीन. प्लांट प्रोटीन का बेनिफिट क्या है व्हेन इट इज प्लांट बेस्ड? इट इज हाई इन फाइबर. It is packed with antioxidant and other nutrient. It doesn't have any cholesterol in it. एनिमल सोर्स प्रोटीन में बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है तो अगर आप वो खाएंगे तो प्रोटीन लेवल तो ऊपर जाएगा बट साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ऊपर जाएगा. इट इज़ लो इन सैचुरेटेड फैट. नो एनिमल हॉर्मोन्स. सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली. फॉर एग्जाम्पल सोया प्रोटीन इज अ कंप्लीट प्रोटीन विद ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड रिस्क ऑफ T2D, CVD, बॉडी कंपोजिशन एंड BMI में बहुत हेल्प करता है आपकी. No, you have a choice, you have a choice because ये सारी चीजें जो आप प्रोटीन बोल रहे हैं, it is very difficult to find in a diet which has got all the amino acids in it. And सबसे बड़ी बात है अमाइनो एसिड होना एक बात है, दूसरी उसकी बायो अवेलेबिलिटी दूसरी बात है, तीसरी बात है वो बॉडी उसको ऑब्जर्व भी करना चाहिए, बॉडी एक्सट्रैक्ट करके उसको ऑब्जर्व कर पाए, ये सारी चीजें. सो यू हैव अ चॉइस, आइदर ईट हार्ड और ईट स्मार्ट. Now, thankfully, we have a protein powder through Nutrilite, which has got PDCA score of 1, the highest represented standard सेट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये उसको मीट करता है. सेकेंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोटीन इज 108 नेशंस के गाइडलाइंस को कंबाइन करके जो गाइडलाइन बनेगा, 108 नेशन हेल्थ स्टैंडर्ड को कंबाइन करके जो स्टैंडर्ड हो ये होगा, ये वो सारे स्टैंडर्ड को पूरा करता है. Right? One scoop of protein powder, which is like 10 gram, it gives you plant-based 8 gram protein. This doesn't have any cholesterol in it. जो carb है वो है ही नहीं. It's only 3%. So आप अपने protein requirement, for example, अगर किसी को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, you need to have either. So अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना है तो आपके choices क्या हैं? Have 11 eggs every day, 50 bananas, 25 potatoes, 8 glass of milk and 8 cups of curd. या आप ये खा लीजिए. सो एक स्कूप आपको 8 ग्राम प्रोटीन दे रहा है तो द चॉइस इज योर्स. एंड सबसे बड़ी बात है ये नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है और इसका पीडी का स्कोर बेस्ट है. सो प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. So these are the benefits of our protein powder. It is all plant-based protein, 100% plant-based protein powder, right? So ये अगर आप उसका देखेंगे तो ये पूरा है. So जो हमारा जो एक फाउंडेशनल हेल्थ बास्केट जिसको हम बोलते हैं जो बनता है, ये उसको पूरा करता है. इसमें विटामिन भी है, मिनरल भी है, वाटर सोल्यूबल फाइबर भी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जिसमें EPA DHA दोनों है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड प्री एंड प्रोबायोटिक. सो अगर कोई व्यक्ति यहाँ नया है और वो ये सोच रहा है कि उसके लिए एक हेल्थ बास्केट कैसे बनना चाहिए सो दैट ही डजंट हैव टू वरी अबाउट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट इज गेटिंग फ्रॉम द फूड बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्रॉम द फूड दिस डेज. ए वो कोल्ड स्टोरेज में होता है. सो ऐसे ही उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू ड्रॉप हो जाती है. यू हैव गॉट नो आइडिया अबाउट द सोर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट बिकॉज आपको नहीं पता कहाँ उग रहा है, उसमें पेस्टिसाइड्स कंटेंट कितना है, यूरिया कंटेंट कितना है. तो ऑल दिस थिंग्स जो leads to nutritional deficiency, and nutritional deficiency is what leads to most of the lifestyle disorder these days. So ये जो बास्केट है, जब आप इस बास्केट को ले मतलब फॉलो करने लगते हैं, एटलीस्ट वो जो गैप है वो गैप ब्रिज हो जाता है. Right? And this brings me to the last slide. Shine every day. Right? Start your every day with gratitude and optimism. Have your nutrition on time because किसी ने कुछ साल पहले मुझे ये बात बोली थी, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. राइट? फाइनेंशियल अप डाउन आएगा, कॉर्पोरेट जॉब ऊपर नीचे जा सकता है. ये वो चैलेंज है जिससे आप बाउंस बैक कर सकते हैं. लेकिन हेल्थ अगर एक बार हाथ से निकल गया, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि आप उसमें बाउंस बैक कर पाएंगे. ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे लाइफस्टाइल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें शायद आप बाउंस बैक नहीं कर सकते. सो यू नीड टू गिव न्यूट्रिशन द राइट importance what it needs. I see people giving more importance to their television,
to the curtains in the house and all the stuff, but they don't give that adequate importance to their own body or to their family's health, nutritional level, right? Have your intention and visualize and set a clear intention. जो रुचिता ने अभी शुरू में बोला था कि जो फारूक का मोटो है, हर घर तंदुरुस्त हर घर मेडिसिन फ्री, ये उनका मकसद है इस प्रोग्राम को रन करने का, बिकॉज उनको जो नॉलेज है ये सारी चीज़ों को ऑल पुट टुगेदर इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट एंड दिस कम्युनिटी इज ऑल अबाउट. आई होप you picked up something new today. Even I learned something new while doing this presentation, right? And exercise every day along with your hydration. So this is very, very important to stay healthy and keep healthy. So you've been a great audience. Thank you very much. And over to Ruchita. Thank you so much, Raj, for that wonderful explanation. I think it's very, very clear and very important. With that, guys, we come to an end of this session. And until the next one, see you next time.